السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے بات کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹرمپ کو فون، کامیابی پر مبارکباد دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن آج قوم سے خطاب کریں گے۔ جو بائیڈن نے کملا ہیرس سے بھی فون پر بات چیت کی۔ صدر بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت بھی دی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا، صدر بائیڈن منتقلی اقتدار اور مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، کامیابی پر مبارکباد دی۔ ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس مدعو بھی کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن آج قوم سے خطاب کریں گے۔ جو بائیڈن نے کملا ہیرس سے بھی فون پر بات چیت کی۔ صدر بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت بھی دی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے، صدر بائیڈن منتقلی اقتدار اور مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی ٹرمپ سے شکست کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی آمد۔ شکست کے بعد پہلے خطاب میں کملا ہیرس نے الیکشن جیتنے پر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ کملا ہیرس کا کہنا تھا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہماری جدوجہد امریکہ کے بہتر مستقبل کے لیے تھی۔ ٹرمپ کو بتایا، اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے ان کی مدد کریں گے، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جمہوریت کا اصول ہے، ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہے، کہا۔ انتخابی مہم میں لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ ہماری جدوجہد امریکہ کے بہتر مستقبل کے لیے تھی۔ کملا ہیرس کا خطاب، انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہماری جدوجہد امریکہ کے بہتر مستقبل کے لیے تھی۔ ٹرمپ کو بتایا، اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے ان کی مدد کریں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا رابطہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا نیا صدر بننے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کی جانب سے درپیش خطرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی خطرات اور اسرائیل کی سلامتی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران کہہ چکے تھے، غزہ جنگ ختم کرا دیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون اور ان کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ جنگ ختم کرا دیں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، علاقائی امن، دفاع، سیکیورٹی تعاون اور دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی ولی عہد نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شاہی محل پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے لیے مستقل حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں اہم کردار کا اعتراف کیا۔ آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ معززین نے دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے جنیوا پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی لاہور سے جنیوا کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ نواز شریف 3 روز جنیوا میں قیام کے بعد لندن واپس جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی جنیوا جائیں گی۔ مریم نواز گلے کا علاج کرا کر نواز شریف کے ہمراہ لندن جائیں گی۔ مریم نواز خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے براہ راست جنیوا پہنچیں گی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان لندن پہنچ گئے۔ مولانا راشد سمرو اور مفتی ابرار بھی مولانا کے ہمراہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان برطانیہ میں 11 روز قیام کریں گے، جس کے بعد 17 نومبر کو ان کی وطن واپسی متوقع ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا دورہ نجی نوعیت کا ہے۔ دورے کے دوران ان کی مختلف ملاقاتیں متوقع ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کارڈ چل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ 47 میں صدر منتخب۔ 538 میں سے ٹرمپ نے 295 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے۔ کملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے۔ الیکٹرز 17 دسمبر کو صدر اور نائب صدر کا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ امریکی تاریخ میں ایک بار پھر خاتون امیدوار صدر نہ بن سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار خاتون امیدوار کو شکست سے دوچار کیا۔
ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन को भी शिकस्त दी थी। कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में भी मैदान मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। ट्रंप अलास्का से 1,40,936 वोट लेकर कामयाब हो गए। मद्दे मुकाबिल कमला हैरिस ने 1,02,318 वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप के हासिल करदा वोटों का तनासुब 55.64% रहा है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में भी मैदान मार लिया। मद्दे मुकाबिल कमला हैरिस ने 1,02,318 वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप के हासिल करदा वोटों का तनासुब 55.64% रहा है। अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह, कमला हैरिस हार गई। डेमोक्रेटिक पार्टी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप 538 इलेक्टोरल वोटों में से 292 वोट हासिल करके फतहयाब हुए। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकीं। सुपर पावर अमेरिका में ट्रंप कार्ड चल गया। 47वें सदर मुंतखब, कमला हैरिस को शिकस्त। इलेक्टर्स 17 दिसंबर को सदर और नायब सदर को वोट कास्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। फतह के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जारी जंगें खत्म, कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामलात ठीक करेंगे। मुल्क को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। हमने सेनेट का कंट्रोल भी वापस हासिल कर लिया है। That will allow us to make America great again. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल वोटों के साथ साथ पॉपुलर वोट में भी आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की तादाद 7 करोड़ से जायद। कमला हैरिस को अब तक 6.5 करोड़ से जायद वोट मिले हैं। 2016 में ट्रंप पॉपुलर वोट्स में शिकस्त के बावजूद इलेक्टोरल वोटों की बुनियाद पर सदर बने थे। अमेरिका में एक बार फिर खातून उम्मीदवार सदर न बन सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार खातून उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त से दोचार किया। ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन को भी शिकस्त दी थी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई फौजदारी और सिविल केस ज़ेर समात हैं। एक अदाकारा को रकम देने के लिए कारोबारी दस्तावेजात को बदलने के इल्जाम में न्यूयॉर्क की अदालत ट्रंप को मुजरिम करार दे चुकी है। 26 नवंबर को सजा सुनाए जाने का इम्कान है। केस में 4 साल तक कैद की सजा भी दी जा सकती है। ट्रंप के सदारती इलेक्शन जीतने के बाद समात मुलतवी होने का भी इम्कान है। ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा और जॉर्जिया की अदालतों में भी मुतादिद केस ज़ेर समात हैं। ट्रंप के वकला की तरफ से सदारती इस्तिस्ना का सहारा लेने की कोशिश का इम्कान है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के सदर बनने के बाद भी अदालतों में उनके खिलाफ सिविल केसेस की समात जारी रह सकती है। आपको बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीतने के बाद समात मुलतवी होने का भी इम्कान है। ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा और जॉर्जिया की अदालतों में भी केसेस ज़ेर समात हैं, जबकि उनके सदारती इलेक्शन जीतने के बाद समात मुलतवी होने का भी इम्कान है। चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम होंगे। अमेरिकी इलेक्शन के मौके पर चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बाहमी एहतराम पर, अमन पुरअमन, बकाए बाहमी और मुश्तरका मुफादात पर मबनी ताउन के असूलों के मुताबिक देखते और संभालते रहेंगे। आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत और अमरीका के दरमियान तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की मुश्तरका ख्वाहिश पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, मिस्री सदर फतह अल सीसी की जानिब से भी ट्रंप को मुबारकबाद दी गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी शानदार इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेगा। अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म हूँ। अपाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत और वसी करेंगे। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, ये जंग के खिलाफ फतह है। उम्मीद है नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी और तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करेगी। सलीम खान नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिए गए। सलीम खान 3 साल के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर फराइज सरअंजाम देंगे। नए तैनात होने वाले रजिस्ट्रार सलीम खान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मुताबिक अफसर हैं। सलीम खान चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी के दौर में पेशावर हाई कोर्ट के भी रजिस्ट्रार रह चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मौजूदा रजिस्ट्रार जजीला असलम को डेपुटेशन पर तैनात किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है, डोनाल्ड ट्रंप या कोई और, हुकूमत तो खुद जाने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी कुव्वत को देखकर फैसला नहीं करती। हमें जो कुछ मिलेगा पाकिस्तान से मिलेगा। जो लोग कहते थे बानी पीटीआई खत्म शुद है, वो खुद खत्म शुद हैं। हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ी है, हुकूमत तो खुद जाके या खुशी मना ले या दूसरे मना ले। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी क़ुव्वत को देख करके फैसले नहीं करती, ना किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी क़ुव्वतों को देख करके वो ये उम्मीद रखी बैठी है कि जी हमें वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा। हमें जो कुछ मिलेगा पाकिस्तान से मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम करेगी। खान साहब का जो नज़रिया है उसी के मुताबिक है, खान साहब के साथ जो लोग अटैच है उसी के साथ है। और जो लोग खान साहब को कहते थे कि हमने कांटा लगा दिया, वो जो ख़त्म है, उनके लिए ये हुकूमत खत्म शुदा है। ये हुकूमत इंशाल्लाह इमरान खान साहब। ट्रंप के कहने पर बानी पीटीआई की रिहाई हुई तो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है, पीटीआई वाले कहते थे कि हमारी हुकूमत अमरीका के कहने पर गिराई गई। पीटीआई की सियासत तो अमरीका मुखालिफ एजेंडे पर कायम है। पीटीआई इसे वक्त अपने बयानी की नफी कर रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई वाले कहते थे कि हमारी हुकूमत अमरीका के कहने पर गिराई गई। पीटीआई की सियासत तो अमरीका मुखालिफ एजेंडे पर कायम है। पीटीआई इस वक्त अपने बयानिए की नफी कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है, रिपब्लिकन्स के इक्तिदार में आने से हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर रहे। पीटीआई दौर में भी अमरीका के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। बानी पीटीआई वापस आएंगे और वजीर आजम भी बनेंगे। मजीद कहा, मुल्क में नाम की जमहूरियत है, हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक मेजर हिंड्रेंस होगा अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, जो मतलब रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके रास्ते में कोई हिंड्रेंस बनेगी। खान साहब इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। तो जो है जमहूरियत से ये ऑटोक्रेसी के नहज तक पहुंच चुका हुआ है। अब हम जमहूरियत को हम खैर बात कह चुके हुए, ये जमहूरी मुल्क रहा नहीं है, अब सिर्फ नाम की जमहूरियत है। अब इसमें बाकी सब कुछ जो है वो ऑटोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब मुझे आज वो शराज साहब को पकड़ लिया, हमारे MNA को, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आप तमाम अहदाफ जो हासिल कर चुके हुए हैं, बंदों को एब्डक्ट करके, बंदों को जो भी करके, मैं कन में नहीं पढ़ना चाहता, तो आज हमारे वो जो MNA हैं उसको एब्डक्ट करने का क्या उसकी क्या वजह? अब और अहदाफ हैं कुछ। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, अमरीकी अवाम ने साबित कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस से 50 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। अमरीकी तारीख में कभी हारा हुआ शख्स दोबारा मुंतखब नहीं हुआ। ट्रंप के इक्तिदार में आने के बाद दुनिया के हालात बेहतर होंगे। अमरीकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत बन चुका, किसी को रोका नहीं जा सकता। ट्रंप जो जीता है, नॉट जस्ट इलेक्टोरल वोट्स, 5 मिलियन मोर वोट्स देन कामला, तो इसका मतलब अवाम उसके साथ है। दुनिया में अमन कायम होगा, बेहतर होगा, और पाकिस्तान अमरीकी ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ट्रंप की फॉलोइंग कितनी है? 86 मिलियन ऑन ट्विटर, X मिलियन। उसने कहा प्रिंट मीडिया तो मेरे खिलाफ है, और आपने देख लिया कि आउट ऑफ कोई 60 बड़े अखबारों में से 57 एंडोर्स्ड कामला हैरिस। इसका मतलब उसका 0 इम्पैक्ट हुआ अवाम पर। तो एक तो प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी, उनकी अहमियत, उनकी पॉपुलैरिटी टेक्स अ डिप, और दूसरा अब द वर्ल्ड इज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया।
गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा लगा रहे हैं। बिजली की दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। गिलगित में ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा के मंसूबे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब में वजीर आजम का कहना था। गिलगित बल्तिस्तान की 2 यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। गजर के इलाके में 2022 में जो कुदरती आफत आई थी वहां पूरे गांव का निशान मिट गया था। आज नई बस्ती की तामीर से यहां खुशी का समा है। उसको किसी हद तक उसको पूरा करने के लिए फिलफॉर 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगा दिया है। इन 2 यूनिवर्सिटियों के लिए मैंने आज ऐलान किया है कि हम दोनों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फंड रखेंगे। खिजर के इलाके में गया जहाँ पे 2022 में एक जो कुदरती आफत आई थी वहाँ पे पूरा गांव उसका निशान मिट गया था। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम आवाम को 9 नवंबर को 2 बजे सवाबी मोटरवे इंटरचेंज पर पहुंचना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई और अपना हक लेने तक किसी सूरत वापसी नहीं होगी। 2.5 साल से फस्तायत जारी है। हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। इंशाल्लाह 9 तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ हमारा इंशाल्लाह एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का, और उसमें बेसिकली हमने करना ये कि हमने करारदाद पेश करनी है, और उस करारदाद के अंदर हमारे साथ जो हुआ और जो हालात बने हुए हैं, और इमरान खान को जो रिहा नहीं किया जा रहा, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, दरमियान में जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया, हमारी मुलाकातें पार्टी की बंद की हुई, लगातार हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोग हमारे गायब हो रहे हैं, और ये 2.5 साल से फसाइया शुरू है जो कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने बड़े पुरअमन तरीके से हम उसके लिए अपना एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर से गुज़श्ता रोज मुलाकात की कहानी सामने आ गई। मौलाना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकवे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पहले मेरे बारे में अपनी पार्टी के अंदर तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आपका जनरल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में कुछ भी कह देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले आपकी अपनी पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं है, इन हालात में मैं कैसे साथ चलूं। असद कैसर ने एहतजाजी तहरीक में भी शामिल होने की दावत दी। मौलाना ने फिलहाल इनकार कर दिया। कहा मैं अभी मुल्क से बाहर जा रहा हूं, सोचना पड़ेगा। बैनुल अक़वामी मंजरनामे का रुख करेंगे। सऊदी अरब की नई फिजाई कंपनी रियाज एयरसाट एयरबसेज समेत 132 तैयारों का ऑर्डर दे दिया। नई फिजाई कंपनी आलमी सतह पर एक मिसाली कंपनी होगी जिसे मुमलिकत के विजन के अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर और रियाज एयर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन यासिर अल रमियान ने कहा नए तैयारों की खरीदारी का मुआहदा अहम पेशरफ्त है जो एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन नेटवर्क को बेहतर और जामे बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है। रियाज एयर के तैयारों में जदीद सहूलतें फराहम की गई हैं जो असरी तकाजों के ऐन मुताबिक हैं। नए तैयारों का अंदरूनी हिस्सा इंतहाई आरामदेह और कुशादा बनाया गया है, जबकि दौरान परवाज टेली कम्युनिकेशन जराए का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। याद रहे रियाज एयर अपने फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज साल 2025 से करेगी। देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।